Hello everyone, can you see me? Am I visible? Not quite sure, so please let me know. Yes. Please write yes in the chat box. I'm just looking at the chat box so that I know that I'm visible. Yes. Okay. So good. Audible, visible, everything is clear. Okay guys, so this Alok here. Let me start now. Okay. So first let us get of this one. As you know that we have got reach the finish line of your JEE preparation. Use code AlokSarLive. You can use that code. And Mega Combat, and then All-India Test Series by Ashish Arora, and then integrated rank predictor for the JEE Main rank. Everything is there. Early Evolve batch, Yodha batch, and then you have couple of more. So let me show you. Let me show you something more. That this is okay. Let me check the ones that I got. Okay, so can you see one more thing? Maybe I will have to import something from somewhere. So let me check. Just wait with me. Yes, so these are the promotions that I have already done, so you can check that. You can check the subscription code also. Let me get to now the other one. So let me start now. Okay, so okay, so here is it now. So is it visible now? This is visible. I mean that the slide that I have shared. Can you just say yes? Because I can't see exactly what you're writing. So okay, not visible. So let me go to the source, and then so what you have to add. Screen is not visible. So I have to write display capture. Let me check something that I want to do. So display capture. So are you able to see now?
Now is it visible? Okay, so let me check video thing that I may be able to add. So is it okay now? Is it visible? Yes. I just experimented and I think I am successful in doing so. Let us check for a while. I think it's okay, right? You can see both. It's okay? Okay, so let me start. Rather than experimenting more, let me start. I understand that there will be some technicalities. Okay, so see, this question is a very good one. This will tell you how to graph the functions. Okay, so you are all ready now, correct? तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये बच्चों ये है, दिस बिलोंग्स टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके, मृण्मयी, तेजस, गट्टे, क्रिस दुबे, संपा, all people, please pay attention. And then just understand, it's a really good question based on application of derivatives, one of the most favorite chapters of examiners all the time, है ना, ये आना ही आना है ना, correct? Okay, now x cubed minus 6x square plus ax plus b, right? This function is such that fx is this much and f2 is 4 is 0, and consider two statements, right? So let me write what they are doing. So what we are saying is this, that we have got two function f2 and f4 is 0. I mean, once you give f2 is 0 and f4 is 0, so 2 and 4 are the roots of it, right? 2 and 4 are the roots, correct? 2 and 4 are the roots of it because it is 0. And of course other root you can find by this one, 6, right? This kind of thing. So roots are 2, 4 and 0. You understand? f2 is 0, f4 is 0. So other root is just f of 0, right? F of 0 is 0. Is it clear or not? Is it clear? Because you can know only from this one, 6. You can know from 6 that yes, that f2, f4 and f0. So I mean all the roots are 2, 4, 0, and so fx gets determined, and fx is x minus 0, x minus 2, x minus 4. तो fx तुम्हारा बन गया x cubed minus, this is 8x, x cubed minus 6x square, and plus 8x. Of course constant term is 0 because you understand that one of roots happens to be 0. So this is like this f of x, right? X cubed minus 6x square plus 8x, right? This is your fx. Now it's a good question on graphing. They are saying statement 1 is x1 x2 दो एलिमेंट हैं, वो बिलोंग कहाँ करते हैं 2 to 4 को, और ये बोल रहा है 2 to बिलोंग करते हैं, और x1 लेस देन x2 सच दैट f प्राइम x1 इज -1 एंड f प्राइम x2 इज 0. मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे दो हैं x1 x2 सच दैट x1 x2 से छोटा है, एंड मोर ओवर वैल्यू ऑफ f प्राइम एट x1 इज -1 एंड वैल्यू ऑफ f प्राइम एट x2 इज 0. ये पूछने का मतलब है कि ऐसे नंबर हैं क्या. तो लेट्स चेक दैट वेदर दे आर देयर और नॉट. ओके, तो अभी let me just go to the next one. I will add the slide. So I have to add the slide, I think. Yeah. So f of x happens to be x cubed minus 6x square plus 8x. This is f of x. So f prime x you will get as 3x square minus 12x plus 8, right? This is f prime x square, right? Now if you want to investigate about S1, देखो ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, और इट्स मोर लाइक ऑफ कोर्स सिंगल चॉइस, बट इट कैन आल्सो बी गिवन मोर देन वन चॉइस. मतलब इसमें तुम्हें दो स्टेटमेंट का अलग अलग पता लगाना है, कौन सही है कौन गलत है, राइट? सो दे आर वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू कांट गेस अनलेस यू नो अबाउट बोथ. तुम एक के बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा रहेगा दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है,
एक ट्रू है एक फॉल्स है. सो आई मीन दैट अनलेस यू डिसाइड इंडिविजुअली, लिसन केयरफुली, जब तक आप अलग अलग पता नहीं कर पाते हो कि S1 ट्रू है या फॉल्स है, और सिमिलरली फॉर S2 यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन, तुम गलत ही मारोगे. करेक्ट है? तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना. तो लेटस, सो एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन, राइट. ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो आपको अलग अलग पता करना है S1 सही है या गलत है. तो चलिए S1 के बारे में पता करते हैं पहले. तो S1 ये बोल रहा था आपका कि ऐसे क्या दो नंबर मिलेंगे x1 x2 जो दो फॉर्मूलाई भी करते हो, x1 छोटा हो और f प्राइम x1 नेगेटिव 1 हो और f प्राइम x2 0 हो. तो जाहिर सी बात है ऐसा मिल रहा है. f प्राइम x पहले 0 करते, पहले f प्राइम x 0 करते, तो दिस विल बी f प्राइम x इज 0, दैट विल गिव यू 3x स्क्वायर माइनस 12x, that will give you 3x square minus 12x plus 8 is 0. So I can write x is negative minus b plus minus root of b squared minus 4ac, so 96, and upon 2 times 3 6, so you'll get 12 plus minus is 48, so 4 root 3 and upon 6, तो आएगा आपका 2 plus minus, और ये 6 है तो आप you will get 2 by root 3, right. So I can write this, or you can write 2 plus minus. If you love this, you can write this also, right. Sometime this is I'll stick with this. So this tells me कि ये जो रूट 0 होंगे f प्राइम 0, वो होंगे कहाँ पे, एक होंगे 2 minus 2 by root 3 पे, और एक होगा 2 plus 2 by root 3 पे. These are the two points, these are the two points where f prime x is 0, right. मतलब वहाँ पे f प्राइम 0 है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, right. अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे. तो ये बोल रहा है कि आपका एक तो 0 है, तो 0 जरूर है. आपको देखिए 2 से 4 में है ना, ये नंबर 2 से ग्रेटर है, ये नंबर लाइज बिटवीन 2 लेस देन दिस नंबर लेस देन 4, करेक्ट. तो ये एक तो मिल गया मुझे, ये 2 से छोटा है सर्टेनली, तो एक मिल गया मुझे जहाँ f प्राइम 0 है. सिमिलरली मुझे चेक करना है कि f प्राइम x वो नेगेटिव 1 है या नहीं, बिकॉज दे वांट नेगेटिव 1 है या नहीं. तो डोंट बी हियर स्मार्ट, जस्ट चेक. तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू नेगेटिव 1, इट इज सिंपल टू चेक. तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज 0. So 3 चला गया आपका, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज 0. यू गेट x माइनस 1, x माइनस 3 इज 0. तो आप देख रहे हो x इक्वल टू 1 और 3. तो ऑफकोर्स यू गॉट 1, यू गॉट 3. सो इट मीन्स आपका ये सर्व करेगा x1, है ना. x1 इज दिस वन, योर x1 कैन बी 3, x1 3 हो सकता है आपका, और x2 योर x2 कैन बी दिस, योर x2 कैन बी 2 प्लस 2 by root 3, राइट, जहाँ पे वो 0 है. तो ये आपको मिल गया 2 से 4 में. ये बोल रहे हैं 2 से 4 में दो नंबर है. x1 स्मॉलर देन x2, ऑफ कोर्स स्मॉलर देन x2 है, देखिए रहो, स्मॉलर देन x2, x1 इससे छोटा है, तो आपका दो नंबर मिल गया, करेक्ट. तो ये आपका दोनों पे, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, राइट. तो इसमें एक प्रॉब्लम देखो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है. एक तो ये रूट्स का है, फिर दूसरा है f प्राइम कहाँ 0 है नहीं है. इट्स बिट लवली प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आई वुड से एनी डे. तो ये आ गया. सेकेंड स्टेटमेंट रिक्वायर्स मोर थिंग, राइट. तो सेकेंड क्या बोल रहा है देखो. ओके, सम पीपल आर जस्ट आस्किंग जतिन गुप्ता दैट हाउ मच मार्क्स फॉर 19%. बेटा ये सब आप पूछा करो, यहाँ नहीं. यहाँ पे बच्चों का बहुत बहुमूल्य समय है. अभी नाउ आई एम गिविंग यू द कोर्स और द अदर थिंग फॉर JEE 2022 मेंस के लिए, राइट. दिस नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क दिस. डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स. अभी बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर आप पढ़ने आए हो तो, है ना. So it's like otherwise it will be cumulative waste for other people, right. So please abstain yourself from doing these kind of things. Okay, अब देखो इधर आगे चलते हैं. ये अब है x3 x4 है आपका 2 to 4 में, देख रहे हो, और x3 x4 से छोटा भी है, और f डिक्रीज कर रहा है इस पे और इस पे इंक्रीज कर रहा है, राइट. अब देखो ये तो, और ऐसा होना चाहिए. दिस लुक्स लाइक मोर मेनेसिंग ना, कि यार ऐसा है वैसे है ना. अब देखो इसको कैसे मैं अच्छे से करूंगा, हाउ आई विल डू इट. तो अब मैं थोड़ा ग्राफ बनाता हूं इसका. वी नो एनफ टू मेक द ग्राफ, सो आई. तो ये आपका ऐसा है कि यहाँ पे देखो इसके रूट्स थे 0 to 4, ये 3 रूट हैं, तो ये ऐसा कुछ क्यूबिक जाएगा, राइट. दिस क्यूबिक विल गो लाइक दिस. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ये नंबर टॉप पे क्या है. ये नंबर आपका है 2 minus 2 over root 3, राइट, बिकॉज ये f प्राइम 0 हो रहा है. ये नंबर है 2 plus 2 over root 3, ये दोनों है. ये डेप्थ कितना है, आई विल हैव टू कैलकुलेट, वी डू नॉट नो राइट नाउ. यहाँ पे ये है 0, बिकॉज ये एक रूट है, दिस इज 0,
roots are, this is 2 and this is 4, the 3 roots 0, 2 and 4. No, remember fx was x cubed. लवली प्रॉब्लम 6x स्क्वायर प्लस 8x. ये एक प्रॉब्लम तुम्हें एटलीस्ट सिखाएगा 4 कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो मतलब बिल्कुल ये करो, है ना? ओके, अब देखो 0 2 4 हो गया, 2 - 2 रूट 3. तो ये आपका अभी मिल गया हमें कुछ नंबर ना. अब बोल रहा है कि ऐसा करना है कि अब ऐसा नंबर आपको लाना है x3 x4 2 to 4 के बीच में हो. तो यू आर लुकिंग फॉर x3 x4 सच दैट x3 लेस देन x4. ये दोनों कहाँ 2 to 4 such that f prime of such that f prime of x3 2 times f prime of x3 is root 3 times f of x4. ऐसा हो. इसमें मैं लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा f prime x3 is root 3 over 2 times f of x4. This is just anything I can write. तो मुझे ऐसा खोजना है कि ऐसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं. और ऐसा मिलने में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ऐसा मिल रहा हो कि 2 से f इज डिक्रीजिंग. तो ऑन 2 to x4 नंबर लाइन पे 2 to x4 में तो f डिक्रीज कर रहा हो और x4 से 4 में इंक्रीज कर रहा हो. ऐसा बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा हो. ऐसा देख रहे हो, ये बोल रहा है यहां तो डिक्रीज कर रहा हो, x4 में आगे बढ़ रहा हो. इसका मतलब x4 हैज टू बी दिस ओनली, राइट? इसका मतलब x4 हैज टू बी दिस, करेक्ट? x4 हैज टू बी दिस, अदरवाइज इट कांट हैपन. तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया कि x4 आई कैन टेक टू बी 2 + 2 रूट 3. तो जाहिर सी बात है मुझे निकालना पड़ेगा कि f of x4 की वैल्यू कितनी है आखिर. तो अगेन दिस फॉर्म विल हेल्प मी. दिस इज x - 2 x - 4. तो अब देखिए x4 क्या होगा आपका. तो ये 2 + 2 by रूट 3 और यहाँ पे आपका 2 by रूट 3 और यहाँ पे -2 + 2 by रूट 3. सो आई कैन टेक नेगेटिव आउट. सो नेगेटिव 2 over रूट 3. दिस इज 4 - 4 over 3. तो ये देखो आपका आ गया 8/3. सो -16 upon 3 रूट 3, करेक्ट? तो आपका ये आ गया रूट 3 over 2 टाइम्स f of x4. तो नेगेटिव 16 over 3 रूट 3. सो आई गेट नेगेटिव 8 over 3. तो आपको पता लगाना है कि क्या x3 ऐसा है कि f prime of x3 नेगेटिव 8/3 के बराबर हो. क्या ऐसा है क्या? दिस आई वॉन्ट टू फाइंड कि ये है या नहीं है. तो आपको लगेगा कि हाँ ये है ना, ये है. ऐसा लगेगा. कैसे लगेगा आपको? देखो ये कैसे लगेगा. f prime x3 - 8 कैसे होगा? ये देखो यहाँ पे x4 पे f prime 0 है, करेक्ट ना? f prime क्या था आपका? f prime x था यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8. इफ यू रिमेंबर दैट वाज f prime x, राइट? f prime x. तो f prime x4 पे तो 0 है, दैट इज गुड. मतलब उस पॉइंट पे 0 है, x4 पे 0 है. और f prime 2 पे, f prime 2 लेट्स कैलकुलेट. f prime 2 ये हो गया 12 - 24 प्लस 8. तो ये नेगेटिव 4 है, देख रहे हो? तो f prime 2 नेगेटिव 4 है और फिर f prime x4 0 है और f prime इज कॉन्टिन्यूअस, नो? तो लगा दो समथिंग कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, राइट? इट्स वेरी पावरफुल थियरम. तो ये थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. IVP फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इट अप्लाइज हियर. f prime ऑफ कोर्स ए पोलिनोमियल, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? इसको gx बोल दो, बुला लो सुविधा के लिए. gx है तो ये gx कॉन्टिन्यूअस है और g की वैल्यू x4 पे 0 है यहाँ पे, जाहिर सी बात है. और g2 नेगेटिव 4 है. तो कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट मिलेगा. देयर वुड बी ए पॉइंट सच दैट g of x3 विल बी नेगेटिव ऑफ 8 over 3. मतलब कहीं ना कहीं f prime x3 ये आएगा वो नेगेटिव 8/3 होगा. बिकॉज यू सी दैट नेगेटिव 8/3 दिस नंबर इज नेगेटिव 4 लेस देन नेगेटिव 8 over 3 लेस देन 0. तो मतलब एक जगह तो मिलेगा ही मिलेगा आपको. ओके, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. वन इज ग्राफिंग, दैट यू लर्न हाउ टू ग्राफ द फंक्शन. तो ग्राफिंग आपको समझ में आ गया. पॉइंट्स ऑफ ये आपके हॉरिजॉन्टल हो गए. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है कर्व, यहाँ पे ना स्लोप इसका f prime 0. तो यही x4 सर्व कर रहा है. दिस विल सर्व एज x4 और there's lovely points. You get all the answers here. I hope it is clear. Can someone just tell that yes it is clear? Anyone quickly? Yes, is that okay? ठीक है, ओके. अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? दिस क्वेश्चन वॉज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसका आपका आ चुका है. अब नेक्स्ट, लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन. तो यहां पे आ गया बोथ s1 s2 आर ट्रू, बोथ आर ट्रू. नाउ लुक एट दिस वन.
ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट, देख रहे हो इस पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट P -3 4 टचेज एक्स एक्सिस एट R और फिर देन टर्न्स टू रीच एट द पॉइंट Q02। मतलब मैं अगर डायग्राम की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है, y = 0 आई कैन टेल, डज नॉट मैटर एनी लाइन, y = 0 एक लाइन है। नाउ एक पॉइंट है -3 4, वहां से एक somebody स्टार्टेड ट्रैवलिंग और यहाँ पे आया P पे, दिस इज P एक्चुअली, हियर R कहीं आया और फिर he has to go till here, that is Q, that Q is 0,2, anything he has to reach like this, P02, PQR, and you want minimum time, velocity speed is constant, and so simple thing is speed they have given, right, just physics little है ना, velocity देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है anyway। तो इसका मतलब है you want PR plus RQ, तुम चाहते हो PR plus RQ मिनिमम हो क्या, ये your friend is that you want to find this as minimum, PR plus RQ मिनिमम, ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि this will ensure, ऑब्जेक्टिव ये है मिनिमम, this will ensure least time, this will ensure least time या मिनिमम टाइम, ओके, लीस्ट टाइम इट इंश्योर, ऐसा कर सकते हैं, लीस्ट टाइम है ना बच्चों, करेक्ट, यस करेक्ट। तो ये आपका लीस्ट टाइम चाहिए आपको। मैंने इस पे लेक्चर लिया है 2-3, यू कैन ऑल्सो चेक माई लेक्चर्स ऑन द दोज हु आर पार्ट ऑफ प्लस, दे कैन चेक इन प्लस कोर्सेज, है ना। रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, एग्जामिनर को पसंद है ये, एनीबडी हु नोज इट, इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू फॉल इन लव। तो ये मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, मज़ा आएगा पहली बार पढ़ने में आपको, है ना, कुछ लोग दोबारा भी कर रहे होंगे। तो मैं अपने अंदाज में बताता हूँ इसको कैसे करना है इसमें। तो ये देखो, इसमें इसका मैं आगे अब कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। सो इट इज़ दिस, ये इसका आंसर जो हम डिराइव करेंगे अभी। तो ये अगर P यहाँ पे है और तुम्हें चाहिए मिनिमम, तुम लाते हो, कहीं जा रहा है तुम्हें P से Q तक जाना है R ना, तो व्हाट वी डू इज दैट वी जस्ट से, हमारा आंसर ऐसा आएगा, है ना, PR RQ अपन निकाल सकते हैं, हम R भी निकाल सकते हैं, अपन R निकाल सकते हैं। तो ये R क्या होगा, अपन बोलेंगे ये अगर H1 है, ये हाइट H2 है, ये अगर ये टोटल डिस्टेंस D है, टोटल डिस्टेंस इज D, देन यू विल फाइंड दैट द पॉइंट R, ये इसको बोलता हूँ मैं एक्स एंड वाई प्रोजेक्शन, या और कैन आई से P0 Q0 विथ योर परमिशन, P0 Q0 माइट बी ए बेटर थिंग। तो ये P0 है और ये Q0 है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस L लाइन है जो यहाँ y = 0 है, दिस लाइन कैन बी एनीथिंग, राइट, यस दिस कैन बी एनीथिंग। सो आई विल से दैट व्हाट हैपेंस दैट यहाँ पे R, ऑफ कोर्स ये फिजिक्स में भी आता है आपका, आप बोल सकते हो डू एज द नेचर डज, राइट, डू एज द नेचर डज, इसको डिराइव करते हैं मैथ वाले। तो do as the nature does, what nature does, nature follow the path of light, no, it will as if the light goes and light is reflected, right, so it's in that kind of manner it will go। but anyway मैं आपको बताता हूँ लेमा, इसका लेमा, I'll tell you the lemma and the small lemma, sweet lemma। उसमें आपका क्या होगा, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि R कौन सा पॉइंट है, तो मैं बोल रहा हूँ R ऐसा पॉइंट है that P0 R over R Q0 is H1 over H2, राइट, मतलब इसकी रेशियो ही हुई नहीं, P0 R डिवाइड करेगा इसको H1:2 के रेशियो में। अगर ये पॉइंट आप पता है आपको ये दोनों, तो आप बोल दोगे R कहाँ होगा, दैट विल बी योर R, आर यू गेटिंग, ये अपना R होगा। इसका प्रूफ आसान है यार, प्रूफ मैं करूँगा ज्योमेट्रिकली, नॉट कैलकुलस, ज्योमेट्री इज मच मोर ब्यूटीफुल, यू मे फॉल इन लव, एटलीस्ट सम ऑफ यू, ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे करूँगा मैं, यहाँ मैं ऐसे करना चाहूँगा यहाँ पे इसको कि देखो ये ऐसा होगा कि कोई भी P ले लो, P से कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट हियर, एनी पॉइंट फॉर एनी पॉइंट हियर, नॉट नेसेसरी R, एनी पॉइंट हियर, लेट्स कॉल इट T, एनी पॉइंट T, फॉर एनी पॉइंट T क्या होगा आपका कि अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हो और कॉल इट P प्राइम, so you will find that PT equal to P prime T on reflection, right, P prime T। so minimizing, और ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट Q जा रहे हो आप, ये दोनों फिक्स हैं P और Q, so minimizing PT plus TQ और QT, this is same as minimizing P prime T plus TQ, agree, because these two will be equal, you are just reflected, so you have created a point called P prime। तो P prime T plus P prime T, Satyam Kumar Mal Pharma was not the principal, okay, you should write principal, you should write PRINCIPLE, not the principal, right, anyway, correct। so if you write correctly, and Fermat's principle, if you write Fermat's principle, so write FERMAT and then use apostrophe or something, Fermat principle, right,
Okay. Anyway, so p prime t plus pt plus tq and p prime t plus tq. So you want, so now the question is that ये नहीं, ये आ गया, तो तुम्हें करना है मिनिमाइज क्या, मिनिमाइजिंग pt प्लस pq tq, ये इक्विवेलेंट है, ये बराबर है, मानो यही बात हो गई कि तुम्हें मिनिमाइज करना है p प्राइम t प्लस tq. समझ में आ रहा है आपको? दोबारा बता रहा हूं, मिनिमाइज करना pt प्लस tq को वही बात है जैसे कि p प्राइम t प्लस tq. तो अब p का रोल हट गया, p का इक्विवेलेंट रोल p रोल हट गया. मान लो कि तुम्हें p प्राइम दिया हुआ है एक और एक q दिया हुआ है, और तुम्हें p प्राइम q से पता करना है कि कैसा आएगा, मिनिमम आएगा. तो p प्राइम q मस्ट बी वन लाइन, राइट, मस्ट बी वन लाइन, राइट. तो यही तुम्हारा r है, जो r तुम देख रहे हो, मतलब जस्ट ज्वाइन p r q, करेक्ट. तो जब ऐसे करेंगे तो देखिए आपका क्या है, ये डिस्टेंस अगर h1 था तो ये भी h1 हो गया, तो ये h1 हो गया, डेरिवेशन समझो, मजा आएगा, प्यार हो जाएगा. ये h2 हो गया, h1 h2. तो अब तुम देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल सिमिलर है, ब्यूटीफुल ज्योमेट्री, ये ट्राइंगल है सिमिलर, दिख रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है. तो इसका मतलब हुआ कि ये यहां से जो ये पी नॉट आर गया, तो तुम बोल रहे हो पी नॉट आर, तुम बोल रहे हो पी नॉट आर अपॉन आर क्यू नॉट इज नथिंग बट h1 अपॉन h2. क्या बेहतरीन आ गया है ना. इससे तुम लेंथ भी निकाल सकते हो, बट हमें लेंथ नहीं निकालना है, हमें निकालना है केवल, हमें निकालना है पी आर प्लस आर क्यू निकाल सकते हैं इससे. पी आर प्लस, वो आप चेक कर लेना, मैं लिख देता हूँ. अगर आपको निकालना है पी आर प्लस आर क्यू, जो मिनिमाइज, वो आंसर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, और ये आएगा h1 प्लस दिस वन, यू कैन राइट h1 प्लस h2 होल स्क्वायर, और आई विल राइट हियर दिस वे दैट d स्क्वायर प्लस h1 प्लस h2 होल स्क्वायर, राइट. दिस यू कैन फाइंड, बट वी डोंट हैव टू फाइंड दिस, राइट. ये हमें तो r निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है पी आर स्क्वायर, उसको इससे मतलब नहीं है ना. तो बस सिंपल है. ये डेटा बहुत आसान था, ये तो किसी ने निकले होगा. ये डेटा कितना आसान है, देखो इस डेटा में आपका ये है ना r0 समथिंग, तो ठीक है, ये r, अब ये जो रिफ्लेक्शन करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे ये वाला, ये तो दिस पॉइंट, दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट ये 0 की बात है, तो -3, 0, एंड दिस पॉइंट इफ यू रिफ्लेक्ट दिस q नॉट, कॉल इट q नॉट, दिस q नॉट इज 0, this is 0,2 I think. Okay, so then this is 0,0 only, right? 0,2, correct, 0,2. So I mean that this point, ये -3, ये ratio 2 is to 1 है, because this length is 4 and this length is 2, so ratio is 2 is to 1. तो 2 is to 1 है, तो r आपका आ जाएगा, डिस्टेंस 3 है इसका, तो r आएगा आपका -2, no, r will be -1, -1,0, right? -1,0 will be r, right? So r will be -1,0 because y is 0. तो आ गया आपका, तो r -1,0 हो गया, तो आपका जो पी आर स्क्वायर हुआ प्लस आर क्यू स्क्वायर फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, पी आर स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट. तो ये 16 and 4 20 and 5 is 25, and you want 50 times, so just multiply, so your answer is 50 times 25, so that is of course 1250. So that's nice, you got 1250 as the answer. It came in JEE Mains, right? It is the actual question. See how beautiful the question is, and what is the basic concept they're asking, reflection, है ना. So it belongs to coordinate geometry also, it belongs to say derivative, or somebody may write this PR is a function of x, और वो कर सकता है, बट बहुत ही लंबा आएगा, तो don't try, no, you have don't do it as a calculus problem, do it as a problem of not maximum minimum but geometrical problem. Okay, so I hope this is clear, है ना बच्चे. अब मैं आगे चलता हूँ. So we have done 2 beautiful problems till now, let's keep doing some problem. I give you practice also. अब ये है एफ बी एनी continuous function on 0 2 and twice differentiable, on 0 2 twice differentiable, f0 0, f1 is 1 and f2 is 2, then differentials are there, means f0 is 0, okay, f0 is 0 and f1 is 1 and f2 is 2. See, this kind of function tells you the role of something called auxiliary function. ऑक्सिलरी फंक्शन, ठीक है ना. ऑक्सिलरी फंक्शन मतलब इसमें क्या करते हैं, आपको दिखाना होता है कि भाई कुछ अगर ये करें, लेमा, यस लेमा आई गेव यू, मराठी पोरगा. लेमा मीन्स अ रिजल्ट which is used to prove the main theorem, right? So math people, they are clever people, one of the most clever ever, and so they use lemmas to prove some theorem, some results. So lemma is any kind of some sweet result that is not the main result, but it is really effective in solving problems.
So my class, my style is teaching style is lemma style. I give you a lot of lemmas which make your job easier in IIT. You will certainly get more than 90% in IIT, surely. All of my students have been getting like this, and you of course have to apply yourself. अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन क्या हुआ, तो अभी जीरो है ये ना, तो तुमने एक फंक्शन बनाया gx इज fx माइनस एक्स, नो ये ऐसा है, मान लो होता है f0 इज 0, f1 इज 1, f2 इज 4, तो आप क्या बनाते, आप gx बनाते fx माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। कुछ ऐसा फंक्शन बना रहे हो आप, क्यों बना रहे हो? Yes, it was previous question, right? Marathi Porga. It was previous year question. I mean, not exactly previous year. It was one of the PYQs, maybe year before the previous one or other one, but really that a good one. That's why I always encourage you that you at least do all PYQs, because you will know the flavor of the exam. Otherwise, what happens? Children wasting their energy on doing questions from lot of AITS, lot of other things. They are simply a waste of time. So I mean that you must learn from the masters, correct? So the problem which has occurred in JEE Advanced or even JEE Mains, when NTA came into existence, after that the level of exam has increased. There are good questions. One reason might be that अब उनको बनाने हैं बहुत सारे पेपर, 16 पेपर और 12 पेपर, तो of course there is lot of good ideas are coming up. They are good for practice than any book, anything else that you find in the market. Okay, so ये continuous function है, देखो डिफरेंशिएबल है और जीरो ऐसा दिया है तो ऐसे निकालना है, तो आपने fx इक्वल टू एक्स माना, जी प्राइम gx मान लिया, तो अब यहाँ से g0 आपका जीरो हो गया, g0 जीरो, g1 जीरो, g2 जीरो, सो वो सब जीरो हो गए, ऑल आर जीरो. सो इट मीन्स दैट इफ आई टेक g प्राइम x, तो g प्राइम x इज f प्राइम x माइनस 1, करेक्ट है. तो पहले g प्राइम x की बात करते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये सब जीरो है तो 2 पॉइंट मिलेंगे अल्फा एंड बीटा से, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, एक अल्फा यहाँ, एक अल्फा बीटा यहाँ मिला, सच दैट g प्राइम अल्फा इज 0 and g prime beta is 0. That means that f prime alpha, that means f prime alpha is 1 and f prime beta is 1. 1 मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना, कहीं f prime 1 मिलेगा, ठीक है ना. ओके, अब करते हैं. ओके, यस, agreed, got the point मानव, because just now saw. ओके, तो g f prime 2 0 होगा. अब देखो ये f prime alpha 1, f prime beta 1. अब अगर मैं बात करूं g prime की ना, gx अपना था fx माइनस एक्स, है ना, तो g प्राइम x वाज f प्राइम x माइनस 1 एंड g डबल प्राइम x इज f डबल प्राइम x, राइट. तो पहले क्या था आपका ये, और एवरी g 0, सो दिस इज ऑन g था, g 0 1 और 2 देख रहे हो, तो g वाज 0 ऑन 0 1 एंड 2. सो यहाँ पे आपको एक अल्फा मिला, आई विल चेंज द कलर, अल्फा मिला, यहाँ बीटा मिला, सच दैट g prime alpha is 0, g prime beta is 0, which will mean that will mean that f prime alpha is 1, f prime beta is 1, और आपको मिल गया g prime, है ना. यहाँ से g prime gamma is 0, where gamma belongs to alpha comma beta, correct. So that will mean that is, this amounts to saying that f double prime gamma is 0, and gamma of course lies between alpha and beta, राइट. तो इंटरवल में तो पूरे होगा ही, है ना. तो ये क्या बोल रहा है, देखो अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसके बाद, दिस इज दे आर आस्किंग दिस वन, f double prime is 0 for all x, for all, no way, for all they are not saying for all, right, it's not for all a, so for all it not there. Then f double prime is 0 for some x is of course true, because we just saw that this is 0 for some, no, gamma is alpha beta, and alpha beta also belongs to 1, 2, correct, also belongs to 0, 2, right. तो वो ट्रू है ना, कि गामा पे 0 है ना. ओके, राइट बॉटम साइड. ओके, सो आई विल राइट अप ओनली. ओके, सो ये 0 आ गया आपका f प्राइम गामा. अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है ना, नेक्स्ट क्या होगा, तो अब ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है
ये बोल रहा है कि ये हुआ f prime is 0 for some, that is not that not always possible, f prime 0, right? ऐसे सिंगल चॉइस है, बट देन इट कैन बी अ गुड क्वेश्चन फॉर मोर देन वन ऑल्सो. तो f प्राइम इज 0 फॉर सम x, जरूरी नहीं है, देख रहे हो. f प्राइम अल्फा 1 है, f प्राइम बीटा 1 है, जरूरी नहीं कि 0 हो हर जगह, वो जरूरी नहीं है, नॉट एट ऑल नेसेसरी, बिकॉज ऑल वी नो इज दिस वन, तो वो आएगा नहीं. then they are saying this one, that f prime is 0, f double prime is greater than 0 for all x. ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है कहीं पे, तो पॉजिटिव तो कहाँ नहीं गया. इसका मतलब we can say only this with certainty that f double prime is 0 for some x. ये हम कह सकते हैं certainty के साथ, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते, है ना. करेक्ट. तो this is the correct choice. Okay. Let me go and do some other problem, like कुछ some problem I have left you for practice also. करेक्ट. कुछ प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है मैंने. अब ये देखो यहाँ पे एकदम सेम है जो पहले था. डिफाइनिंग अभी तुरंत कराया था ना, डिफाइनिंग ऑक्सिलरी फंक्शन. ये क्या है? डिफाइनिंग ऑक्सिलरी फंक्शन. वो कैसे डिफाइन करते हैं? अब देखो ये f प्राइम एक्स दिया हुआ है ग्रेटर देन एफ एक्स, मतलब f प्राइम एक्स माइनस एफ ग्रेटर देन 0. करेक्ट है, ऐसा है ना. तो अब देखो इसमें क्या होगा, है ना. तो इसमें ऐसे करना होगा आपको कि ये कहाँ आकर करता है, राइट. तो जिन्होंने किया है डिफरेंशियल इक्वेशन वो थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे, अदरवाइज मैं कह दूं आपको ये आप gx डिफाइन करो e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, दिस वन. लेट्स चेक वाई नेगेटिव एक्स एंड वाई नॉट. तो जब तुम g प्राइम एक्स करोगे ना, g प्राइम एक्स, तो आएगा e टू द पावर माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस e टू द पावर नेगेटिव एक्स एंड एफ एक्स. So e to the power minus x and f prime minus f. It is shorthand for f prime x. तो ऐसा आ गया ना, देख रहे हो, e to g prime x. तो ये आ गया आपका g prime x. करेक्ट. अच्छा, तो ये बोल रहा है f ये पॉजिटिव है, इसका मतलब g prime x is positive. g prime x is positive and f0 is 0. That means that यहाँ से g0 is 0, right? तो g prime x positive, g0 is 0. तो gx के बारे में क्या कह सकते हैं अपन? gx के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, पॉजिटिव है. इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर gx ग्रेटर देन g0. करेक्ट है. और g0 इज 0, सो gx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल इज ग्रेटर देन 0, एंड 0 पे 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. gx बोल सकता हूं मैं gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x पॉजिटिव और इक्वल टू 0 ऑल्सो. तो ये मेरा आ सकता है. तो चॉइस देखो क्या क्या दिया इसमें. इसने दिया एफ एक्स पॉजिटिव, फॉर सारा चॉइस पॉजिटिव है. एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है, नो साइन कैन बी असर्टेन, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, राइट. तो एफ एक्स पॉजिटिव इज करेक्ट, कॉन्स्टेंट यू कैन नॉट से, बट एफ एक्स पॉजिटिव वी कैन से, बिकॉज यहाँ आप देखो कि यहाँ पे आ रहा है जी एक्स पॉजिटिव. फॉर दिस वन दिस विल स्टिक विद जी एक्स पॉजिटिव, और यहाँ से जी एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे देख रहे हो e to the power माइनस एक्स एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, implies fx is positive, implies fx is positive. करेक्ट. तो fx पॉजिटिव है. इज दैट क्लियर? तो इसमें था डिफाइनिंग ऑक्सिलरी फंक्शन टू डू द वर्क. आई होप दैट इज क्लियर. यस, एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट लग रहा है, कुछ भी है ऐसा? ओके. fx पॉजिटिव. ओके. नो, इसका मैं एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, 4-5 एग्जांपल. डिफाइनिंग ऑक्सिलरी फंक्शन एक और भी करेंगे, अभी मैंने टेक्स्ट में रखा है एक और. लेट मी चेक दैट वेदर आई हैव केप्ट इट और नॉट, बिकॉज सम क्वेश्चंस आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट्स से दैट और क्या क्या किया हमने. अच्छा, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. If R to R be continuously differentiable function, continuously differentiable means that f is differentiable, and f prime is continuous. Means only one time only f prime is continuous. F prime is continuous. F is differentiable and f prime is continuous. Correct. Now see,
यहाँ पे आपका दिया हुआ है f0 is f1 is 0, okay, and f prime 0 is 0. Now because f0 f1 0 है तो Rolle's theorem से 0 1 के बीच में you apply Rolle's theorem. तो Rolle's theorem tells you that f0 f1 0 है तो एक अल्फा मिलेगा यहाँ पे अल्फा such that f prime alpha is 0 for alpha for some alpha belong to 0 to 1, राइट कहीं तो मिलेगा. तो इसका मतलब अब आ गया आप तुम्हारा 0 अल्फा 2 पॉइंट 0 अल्फा. तो अब आपका आ गया f प्राइम 0 इज 0, f प्राइम अल्फा इज 0. तो 0 और अल्फा के बीच में there will be a beta such that now f double prime beta is 0 for beta element of 0 to alpha, right. ये भी 0 आ गया, कहीं ना कहीं 0 तो आ गया है ना. तो अब देखो क्या बोल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 0 आ गया f प्राइम बीटा 0 से अल्फा के बीच में, मतलब पूरा r पे भी मिल सकता है ना, या 0 to 1 के बीच में. तो अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है f double prime 0 is 0, which is not true. f double prime 0, we do not know f double prime 0, right. We know 0 for some beta, for beta means for some beta, we don't know for all beta, that's too much. f prime 0 for some c, ये c नहीं होना चाहिए, f prime c मतलब 0. It's this choice root f double prime of c equal to 0, which is true. If c is not 0 f prime is 0, मतलब ये बोल रहा है f prime 0 है तो c 0 ये भी नहीं कह सकते, है ना, करेक्ट है ना. f double prime 0 तो c 0 वो नहीं कह सकते, है ना. तो that you cannot say, and f prime positive that also you cannot say, करेक्ट. तो मतलब इसमें केवल आप बी ही आंसर कर पाओगे, है ना. तो दैट इज दिस आंसर. ओके, अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो ये कैसे आपका है, ये है लेट आर बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड एफ कहाँ से कहा था, -1 1 टू आर. डिफाइंड है एफ एक्स इज x sin 1 by x, x is not 0, 0 x equal to 0, this 0 x equal to 0. और चाहिए क्या आपको, तो you want these choices to be made that ये f नहीं है ये t है, f satisfies conditions of Rolle's theorem on -1 1, f satisfies conditions of Lagrange's theorem on -1 1, एंड 0 1 पे Rolle's थ्योरम एंड Lagrange's थ्योरम. मतलब दो इंटरवल है, -1 1 और 0 1 पे आपको चेक करना है Rolle करता है या Lagrange करता है. तो -1 1. तो पहले ये देखते हैं ये f प्राइम x कहाँ डिफाइन है. तो जब मैं f प्राइम x करूँगा f प्राइम x को f प्राइम x, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप f प्राइम x, तो यू विल गेट हियर x टाइम्स sin 1 over x, so cos 1 over x square, this one, right, cos of 1 over x rather. So, or may not be, we may not need also, we may not need, but anyway let me check, we may not need, so no need to find this one. We just want to find out, see ये f है ना, तो f is continuous on first test on -1 1 whole interval, first test on -1 1. देखो पहला -1 1 पे टेस्ट करते ना, -1 1 पे, राइट. तो ये देखो क्या हो रहा है -1 पे, यहाँ पे f इज डिफरेंस 0 पे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे, राइट. तो ये f प्राइम 0 प्लस is limit h tend to 0. In fact f prime 0 also you can say, because difference does not change, so I can simply write that f prime 0 is limit h tend to 0 h sin 1 over h upon h. So limit h into 0 sin 1 by h. Now this limit does not exist, right? This limit does not exist. ठीक है, ये लिमिट h tend to 0 sin 1 by h exist नहीं करता है, and so f prime 0 does not exist. तो ये इंटीरियर पॉइंट है. तो Rolle's के लिए क्या होना चाहिए, Rolle's के लिए -1 1 में Rolle's के लिए होना चाहिए, Rolle's के लिए that f continuous on -1 1, which is true. F differentiable on -1 1, it is false because not differentiable at 0. तो ये गलत है, ये है ना. तो यहाँ पे है ना Rolle's नहीं लगेगा ना, Rolle's नहीं लगेगा क्या, Rolle's नहीं लगेगा यहाँ पे, -1 पे नो Rolle's, करेक्ट. अच्छा, बिकॉज 0 इंटीरियर पॉइंट है. और
और भी होता है रोल्स के लिए, f -1 is f1, that I did not check also, I did not check, although it will be there, but odd function है, लेकिन मैं चेक नहीं करना चाहूँगा, है ना, इसमें नो नीड टू चेक, बिकॉज यही फॉल्स हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया, है ना। अच्छा, रोल्स नहीं कर रहा है। what about this one, what about Lagrange's LMVT? So LMVT has one condition, this f continuous is there, ये भी है, तो ये भी नहीं हो रहा है इसमें, तो वो भी चला गया, करेक्ट। वहाँ पे we don't need f0 is f1, f-1 is f0 is f1, that we don't need, राइट, तो ये नहीं नीड करे, तो LMVT नहीं, रोल्स भी नहीं, LMVT भी नहीं, तो ये बोल रहे f, तो ये भी नहीं होगा, माइनस ये नहीं होगा रोल्स, और ये भी LMVT नहीं -1, बिकॉज 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखते हैं 0-1 पे रोल्स, 0-1 पे, तो नाउ ऑन 0-1, अब 0-1 पे क्या होगा भाई, 0-1 का मतलब है कि 0 से मुझे चेक नहीं करना है ना, तो कंटिन्यूटी 0-1 पे है, तो कंटिन्यूटी है, सी कंटिन्यूटी है, क्यों, क्योंकि अगर f0 करते हो, f0 0 है, and limit h tend to 0 f of h is limit h tend to 0 h sin 1 by h, ये 0, because sin 1 by h limit h tend to 0 h sin 1 by h, क्योंकि sin 1 by h जो है वो क्या है, ओके, sin 1 by h क्या है आपका, वो फाइनाइट है, और h तो आपका 0 की, तो 0 हो जाएगा आपका 0, तो इसलिए f0 0 है, f कॉन्टिन्यूस है, मतलब f इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0-1 क्लोज इंटरवल। तो मैं आगे लिखता हूँ इसको, इसके लिए f इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0-1 क्लोज, कॉन्टिन्यूस है 0-1 क्लोज पे। f इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ऑन 0-1, दैट ऑल्सो इज ट्रू, डिफरेंशिएबल है 0-1 पे, क्योंकि 1 पे तो था ही, इस पे 1 के अंदर, और 0 पे नहीं था लेकिन अंदर है, तो डिफरेंशिएबल है, करेक्ट, डिफरेंशिएबल है। बट व्हाट इज f0 एंड f1, ये ट्रू नहीं है, f0 इज 0 एंड f1 इज नॉट 0, नो, f1 इज sin 1, सो f0 इज नॉट f1, इसलिए रोल्स वैलिड नहीं है, राइट, सो रोल्स नॉट अप्लाइड, राइट। सी जो चॉइस था, if satisfying the Rolle's theorem, no, because not satisfies, not because f0 is not f1, तो नहीं satisfy करता है। यहाँ पे Lagrange मीन थ्योरम और 0-1 ये satisfy करेगा, बिकॉज ये सेम कंडीशन है, दोनों जो रोल्स करेगा Lagrange करेगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, Lagrange कर रहा है, क्योंकि 0 पे नहीं है तो आ गया आपका, इसका मतलब आपका आंसर हो गया ये वाला, कि हाँ ऐसा, ये तो चाहिए नहीं है हमें, केवल यही चाहिए LMVT के लिए, तो दिस इम्प्लाइज LMVT इज ट्रू। सो Lagrange मीन थ्योरम only happens for, you are saying कि वो हो f continuous हो 0-1 पे, क्लोज्ड पे, और डिफरेंशिएबल 0-1 पे, तो हो जाएगा मेरा, तो आ गया मेरा, तो that is how we say it, okay, correct, just take some time to let it all sink in, yes, okay, astrophysics I am doing, okay, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो एक अलग फॉर्म है, अप्लाइंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, जो अप्लाई करते हो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ए सुटेबल फंक्शन fx इन 0h पे, वी हैव fh इक्वल टू दिस मच थीटा h, मतलब ये बोल रहा है ना कि अगर 0h पे अप्लाई करोगे फंक्शन, इसको सुटेबल फंक्शन को 0-1 पे, तो क्या होगा, तो जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इज f प्राइम ऑफ c मिलेगा, जहां c बिलोंग टू 0,h, राइट, तो 0,h है, तो कहीं मिलेगा ना h/3 समथिंग, तो ये क्या बोल रहा है कि उसको मान लो, ये बोलो उसको मान लो थीटा h, मतलब ये बोल रहा है कि थीटा h मान लो 0 <3 <1, करेक्ट है, तो वो जो c पॉइंट है मान लो वो थीटा h पॉइंट है, थीटा h कहीं ना कहीं तो मिलेगा यार, 1/3 2/3 स्मॉल बिग एनीथिंग, तो इसमें मिलेगा, तो ये बोल रहे हैं fh minus f0 by h is f prime theta h, same thing बोल रहा है f prime theta h, तो for f is equal to sin, okay, so f prime of theta h fh minus f0 by h, करेक्ट, तो f prime of theta h कितना होगा, ये देखिए, अगर fx cos x है तो f prime हो गया नेगेटिव ऑफ sin x, तो ये आ गया sin of theta h इज fh, तो cos h minus f01 upon h, so negative 1 minus cos h by h, this one, और आपको चाहिए थीटा की वैल्यू when h tend to limit h to 0 थीटा, तो दोनों तरफ लिमिट लेते हैं आप, so limit h tend to 0,
साइन ऑफ थीटा एच इज लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एच बाई एच, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो मैं लिखूंगा इसको, ये नेगेटिव साइन थीटा एच है बाय द वे, सो नेगेटिव, तो आई विल राइट हियर। अब यहाँ पे आपका आएगा वो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, यू राइट साइन थीटा h बाई h is limit of h tend to 0 1 minus cos h by h square. So you'll find this limit is theta because theta h, this is theta, और ये limit है 1 by 2, so your answer becomes theta equal to 1 over 2. So this is your answer. Is that clear? सही आ गया बच्चों? Theta is 1 by 2 आ गया, half. Okay? Okay. So theta is 1 by 2. This question also you can try. This is about differentiability at 0 and derivative is continuous at that point or not. तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये JEE 2000 इट इज़ एडवांस्ड प्रॉब्लम, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, है ना। तो मैं एक इसको लिख देता हूँ, देखो कैसे करोगे। आई विल गेट यू स्टार्टेड एटलीस्ट। तो आई राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है आपका, पहले एक्स मॉड एक्स ही छोड़ दो इसको, एक्स मॉड एक्स जी एक्स इज साइन एक्स, सो जी ओ एफ एक्स ये आएगा साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स, साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स, ऑड फंक्शन भी है बट एनीवे। तो इसको लिखता हूँ ऐसा, जी ओ एफ को, इसको जी ओ एफ को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं फंक्शन बोलता हूँ ए एक्स, फंक्शन ए एक्स। तो आई राइट फंक्शन ए एक्स इज साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स, so it is sine of x square, x greater than equal to 0, and negative of sine x square, x less than 0, correct? That we can write or not, x squared, है ना। तो ये ऐसा दो फंक्शन हो गया ax ऐसा। तो और इसी के बारे में पहला बोल रहा है कि a is differentiable and derivative continuous और a is twice differentiable, दोनों चीज़ें बोलना चाह रहे हैं। तो let me add the page now। तो ये आ गया एक फंक्शन ax है, एक्स है, वो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज अ फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी आई चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज कॉन्टिन्यूअस, ए इज continuous at x equal to 0, right? Because both limits are 0. So a is continuous at 0. That is 1. Now what I do? If a is continuous, what I can do? If a is continuous. So if a is continuous, तो अब मैं आता हूँ डिफरेंशियलिटी पे, तो मैं अप्लाई करता हूँ कॉन्सेप्ट कॉल्ड समथिंग कॉल्ड दिस वन, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, तो आई एम राइटिंग ऑल्सो लिमिट ऑफ डेरिवेटिव। रिलेशन क्या है लिमिट ऑफ डेरिवेटिव एंड वर्सेस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो अब ये रिजल्ट ऐसा बोलता है कि अगर a कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और अगर लिमिट ऑफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब लिमिट यही डेरिवेटिव था, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव एक्स था, मतलब आपका ओके डेरिवेटिव करना पड़ेगा अभी, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब मैंने ए प्राइम एक्स लिया, ए प्राइम एक्स, तो ए प्राइम एक्स लिया, तो ए प्राइम एक्स हुआ, ये आ गया 2x cos x स्क्वायर एक्स पॉजिटिव एंड माइनस 2x cos x स्क्वायर एक्स नेगेटिव, राइट। जीरो पे अभी पता नहीं क्या है, जीरो पे नहीं, तो क्या करूँगा मैं इसका, आई कैन यूज फर्स्ट प्रिंसिपल बट आई विल अप्लाई दिस वन, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूँगा, आई विल कैलकुलेट दैट लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए प्राइम एक्स क्या बन रहा है, दिस आई विल कैलकुलेट इज दिस आई विल कैलकुलेट लिमिट एक्स प्राइम 0। तो इट्स लाइक अनदर फंक्शन, कोई फंक्शन मान लो ये बी एक्स कोई फंक्शन है, इट्स जस्ट लाइक फाइंडिंग दैट लिमिट एक्स टेंड टू 0 बी ऑफ एक्स, ये एक नया फंक्शन ही है। तो बी एक्स ऐसा लिमिट है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बी एक्स का जो आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वो 0 एंड राइट हैंड लिमिट भी 0, राइट। तो दोनों 0 हो गया, लेफ्ट एंड राइट, बी एक्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब ये हुआ लिमिट ऑफ डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट, सो इट मीन्स दिस ओनली बिकम्स वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, मतलब दिस ओनली बिकम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। तो उसकी वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू 0 है, तो 0 आ गया इसका। तो ए प्राइम एक्स जो आपका आ गया, ए प्राइम एक्स आप लिख सकते हो, फिर ए प्राइम एक्स को 0 आ गया चूंकि, तो ए प्राइम एक्स इज लिख दोगे आप 2x cos x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x cos x स्क्वायर एक्स लेस देन 0, करेक्ट।
ये a प्राइम एक्स बी, इसको मैं बी एक्स बोल रहा हूँ, बी एक्स। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। अगेन 1 2 देखा, जो पहले बताया था 1 2 वाला फिर आ गया चक्कर 1 2 ना। जब तक पूरा नहीं जाओगे आंसर नहीं कर पाओगे। तो 1 में क्या है, देखो 1 में क्या है, 1 में तो लेट मी चेक एवरीथिंग इज कमिंग अप। तो यू आर एबल टू सी मी, ओके। तो ए में था एफ GOF was of course GOF was the function, GOF is differentiable, मतलब GOF का नाम a था, तो a is differentiable मतलब a प्राइम exist, a is differentiable, a प्राइम exist का 0 पे लिख दिया। और ये लिख रहा है डेरिवेटिव कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, डेरिवेटिव तो वो भी है, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, राइट। a का डेरिवेटिव मतलब a प्राइम कंटिन्यूअस है, a प्राइम कंटिन्यूअस है, करेक्ट। a प्राइम आ गया यहाँ पे a प्राइम, और बोल रहे हो a प्राइम कंटिन्यूअस है, करेक्ट, a प्राइम कंटिन्यूअस है। बट दैट डज नॉट मीन दैट a डबल प्राइम का क्या होगा, a डबल प्राइम, राइट, मतलब b कंटिन्यूअस है, राइट। तो डिफरेंशियल होगा नहीं पता ना, फिर लिखना है, वो बोला डिफरेंशियल है नहीं डबल डिफरेंशियल, तो कंटिन्यूअस तो है ये फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है और कंटिन्यूअस भी है, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड, राइट, एग्जिस्टिंग ओनली वाज रिक्वायर्ड, ओके। तो अब bx लिखते हैं, आगे मैं लिखता हूँ bx, नेम चेंज सो इट इज बेटर। सो तो मुझे निकालना है b प्राइम के बारे में। तो bx आ गया आपका 2x cos x square x greater than equal to 0 and minus 2 cos x square x less than 0। तो b कॉन्टिन्यूअस है आपका, करेक्ट, b इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, ठीक है। अब b डिफरेंस में लेकिन वो देखना है, तो अभी b प्राइम x निकालता हूँ मैं, b प्राइम x। तो b प्राइम x विल बी, यू सी आई एम जस्ट राइटिंग बिकॉज बोथ आर डिफरेंशियल फंक्शंस, दिस एंड दिस दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है दोनों, तो डिफरेंशियल सिंपली कर देंगे अपन। तो लिखेंगे इसको 2x, करेक्ट, तो 2x cos x square, so I can simply write that, right? Is it clear that I'm not doing anything else here, so I'm simply writing here। तो ये आपका आएगा 2x times cos x square, right? तो you will get here negative of sin x square, let me add something, तो 2x negative of sin x square times 2x plus 2 cos x square, right, ये तो ये आपका आ गया b प्राइम एक्स दिस मच, सो आई कैन राइट दिस एज, ये आ गया x लेस देन 0, ये चीज़ नेगेटिव वाला, ये इसका, ये सिंपली इसका नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ओनली नेगेटिव। सो आई विल राइट हियर दिस इज 4x स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर, दिस प्लस 4x स्क्वायर, सो आई विल राइट प्लस 4x स्क्वायर sin x square and this is minus 2 cos x square x less than 0, this was greater than 0। तो नाउ सी, ये जो b प्राइम है, b प्राइम, b का डेरिवेटिव b प्राइम है ना, b प्राइम क्या है आपका, b प्राइम इज ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस। देख लो x0 पे करो, x0 है ना, आ रहा है, जस्ट चेक b प्राइम, इफ नॉट देन ऑफ कोर्स वील हैव टू डू नॉट अदर थिंग्स। तो चलो b प्राइम तो आ गया ना, पहले प्राइम x आ गया। अच्छा, अब मैं ले रहा हूँ लिमिट x टेंड टू 0 b प्राइम, मैं b डबल प्राइम 0 नहीं निकाल रहा हूँ, b डबल प्राइम 0 यू वांट दैट ये है या नहीं है, वी डोंट नो, इट इज क्वेश्चन मार्क, राइट, करेक्ट ना। अच्छा, नाउ लिमिट x टेंड टू 0 जब b प्राइम x करेंगे अपन b प्राइम x, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यू सी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये x लेस देन 0 यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यू विल गेट एज सी -2, राइट, बिकॉज x 0 है, -2, just check it, and this is positive. I mean that they're both different, right? They're both different, and so derivative of course you see limit does not exist, limit does not exist ना, एक 2 है -2 है, तो लिमिट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे तुम बोलोगे कि डेरिवेटिव ऑफ b, ये b प्राइम है, 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आप बोलोगे कि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है ना, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं किया ना 0 पे, b प्राइम 0 इज नॉट देयर, b प्राइम 0 इज नॉट देयर। तो जो आपका आंसर बनेगा इसमें वो ये बनेगा कि आपका ये तो सही है, ये तो सही है आपका कि ये वाला आ गया आपका, करेक्ट, बट ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्या है, क्या है जी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो नो इट इज नॉट, इट इज ओनली वंस डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल वंस है और डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, बट ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट। तो ये बोल रहा है दोनों, तो 1 ट्रू है बट 2 फॉल्स है, करेक्ट, दैट इज माई आंसर, करेक्ट। so, ऐसे सवाल में पूरा ही करना पड़ता है आपको, अदरवाइज यू कांट डू। ओके, लेट मी डू वन मोर मे बी इफ टाइम परमिट्स।
this also seems to be a lovely problem if you think like this. इस देखो फिर वही है, f prime c is lambda fc, f prime c, तो ये क्या याद दिलाता है आपको, f prime c minus lambda fc equal to lambda fc, ये एक्सप्रेशन है, this first resembles f prime x minus lambda fx ना, इसकी याद दिलाता है ना, और ये किसकी याद दिलाता है, इंटर, कुछ तो है ना, कहीं ना कहीं आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये क्या है ना। तो ये आप क्या करोगे, ये ऐसा देखो कि आप gx डिफाइन कर दो e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स एफ एक्स, जैसा किया था शुरू के एग्जाम्पल में e टू पावर माइनस एक्स में। तो द मोमेंट टू डिफाइन gx लाइक दिस नो, देखो g प्राइम क्या आ गया आपका, इज e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, यहाँ पे f प्राइम एक्स माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स एफ एक्स, तो माइनस लैम्डा एक्स कॉमन है और लैम्डा भी आएगा, लैम्डा इज हियर, तो माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस लैम्डा एफ एक्स, वाओ सेम थिंग है, कर सेम थिंग। तो अब देखिए यहाँ पे f0 जीरो है, देख रहे हो f0 जीरो है, यहाँ पे f0 जीरो है, एंड f2 पाई वो भी जीरो, साइन है, बाकी से मतलब नहीं मुझे, कोई कॉस का सारा, ये जीरो ही हो गया, तो ये जीरो f0 जीरो, तो इससे आ जाएगा आपका g0 भी जीरो, बिकॉज ये जीरो है, और g2 पाई भी जीरो, तो ये g0 g2 पाई जीरो है, इसका मतलब है कि g प्राइम c will be 0, that is f prime c is lambda fc, करेक्ट है। तो for some c, for c belong to 0, 2 पाई, मतलब एक c मिलेगा ना 0 2 पाई में, जहां वो 0 होगा f prime c इसके बराबर होगा, और एक बोला, ये बोल रहा है कि let is lambda element of r there exists no, then lambda is, मतलब ये बोल रहा है कि अगर s है set of all values of lambda, S is the set of all values of lambda such that एक पॉइंट ऐसा मिलेगा C with f prime c equal to f ना, मतलब आपको यही करना है, आपको बोलना है कि ऐसे कितने लैम्डा मिलेंगे, कौन से लैम्डाज होंगे जिनके लिए लैम्डा बिलोंग करेगा R को, और एक पॉइंट C मिलेगा जहां f prime c लैम्डा बराबर होगा, तो तुम्हें मिल गया ना किसी लैम्डा, इट इज ट्रू फॉर एनी लैम्डा इफ लैम्डा इज 0 एनी लैम्डा, बिकॉज हियर नो कंडीशन, इट इज ट्रू फॉर ऑल लैम्डा, और ऑल लैम्डा, राइट, ऑल लैम्डा, करेक्ट। तो जब ऑल लैम्डा है तो बस हो गया इसका आंसर फिर, तो देखो लवली आंसर यू गेट दैट s इक्वल 0, दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, s इज 0, ये सिंगलटन सेट, ये 0 2 पाई, या फाइनाइट से मोर देन वन एलिमेंट, बट फाइनाइट नहीं है ना, इनफाइनाइट है, s इज r, आर यू गेटिंग माय आइडिया। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, सो आई होप दिस ऑल आर क्लियर दैट ये कैसे कर रहे हैं, दिस इज द मेन आइडिया अबाउट दिस वन, इज इट क्लियर। सो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको यही सब नॉर्मल आइडियाज़ हैं, तो basically you try to work on it, and we have covered all the ground. I have given you 1-2 homework also here, so you can just check later. Okay, so in general this chapter will of course come in exam, because इससे question आपके JEE Mains में बनते हैं और एडवांस में भी। तो I would advise each one of you who is watching the video और live जो देख रहे हो और बाद में देखेंगे बच्चे, कि आप इसको you can't neglect, it will have lot of questions, like maybe 3-4 questions some year, even more, who knows, suppose entire one passage is there, or entire one paragraph or a STEM question, then you have to worry about it. Okay, then see you next time. Till then, keep studying, keep safe, let's meet again. So I'll close the window now and let's meet again.